اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین و خطاب المتین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ یہ سورہ شورى ہے اور اس کی آیہ نمبر 23 ہے 23۔ پروردگار عالم اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب فرما دیجئے کہ میں تم سے اپنی اس رسالت کا کوئی اجر، کوئی صلہ، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا ہوں، سوائے اس کے کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ یعنی مفہوم کیا ہو گیا آیت کا؟ میری رسالت کا صلہ، قیمت، اجر اور معاوضہ فقط اور فقط یہی ہے کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، فوراً بعد میں فرمایا اور جو شخص نیکی کا کام کرے گا ہم اس کے اس نیکی کے کام کو بڑھا چڑھا دیں گے۔ نزد لہو، دیکھیں آیت میں کتنا بہترین، صاف اور واضح پیغام ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے مودت کی جائے، اور اس کے فوراً بعد کہا کہ جو شخص حسنہ انجام دے گا وَمَن یقترف حسنۃ، نیکی، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کی اس نیکی میں بہت زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ ان سے، اپنی امت سے یہ کہو کہ میری رسالت کا اجر صرف میرے قربا سے مودت ہے۔ مودت یہ ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر کے قربا، اقربا، اہل بیت کو ایک لمحے کے لیے بھی ان سے ڈسکنیکٹ نہ ہوں، اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ البتہ محبت میں پھر ایک حد تک گنجائش ہوتی ہے، جتنی محبت ہوگی اتنا آپ کا ان کے ساتھ جوڑ ہوگا، اتنا بندھن ہوگا، لیکن مودت میں ایسا نہیں ہے۔ دو مثالیں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں مودت میں یہ ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے اور مینڈک کو پانی سے محبت ہے۔ دیکھیں مینڈک خشکی پہ بھی گزارا کر لیتا ہے، اگرچہ پھلتا پھولتا خوش باش رہتا پانی کے اندر ہے، لیکن مچھلی ایسے نہیں ہے۔ مچھلی کا ادھر سے آپ نے پانی سے رشتہ توڑا، ادھر سے اس نے تڑپنا شروع کر دیا، بس یہ مودت ہے۔ ایک لمحے کے لیے گویا خدا یہ کہہ رہا ہے، اور رسول اپنی زبان صادق سے اپنی امت کو، چونکہ آیت قل سے شروع ہو رہی ہے، یہ فرما رہے ہیں ایک لمحے کے لیے تمہارا اگر میرے قربا سے رشتہ ٹوٹے تو مچھلی کی طرح تمہیں تڑپنا چاہیے۔ اور روایات نے، آیات نے اور اسلام نے جو، یہ تو ایک مثال تھی، مودت کی تعریف کی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ مودت وہ مقام ہے، وہ منزل ہے، وہ بلندی ہے جس پر تمام محبتیں قربان ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان کو اپنے والدین سے محبت ہے، اپنے
अपनी औलाद से मोहब्बत है, अपने बेटों से मोहब्बत है, अपनी बेटियों से मोहब्बत है, अपनी बीवियों से मोहब्बत है, अपने माल से मोहब्बत है, अपनी दुनिया से मोहब्बत है, अपने पेट से मोहब्बत है, अपनी कुर्सी और इक्तदार जिनके पास है उनको उससे मोहब्बत है। अपने आप से इंसान को कितनी मोहब्बत होती है इसकी कोई मिसाल ही नहीं दे सकता। अपने आप से बेपनाह मोहब्बत होती है। इंसान अपने आप के लिए अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे वो जितनी भी दौलत हो, जितना भी मालो ज़र हो, अपने आप के लिए। यहां पर क्या फरमाया, कहा अपने आप से तुम्हें मोहब्बत है, ठीक है, वालिदैन से मोहब्बत है, ठीक है, औलाद से मोहब्बत है, ठीक है, अपनी दुनिया से मोहब्बत है, अपने नफ्स से मोहब्बत है, अगर कोई साहिब इक्तदार है तो उसको इक्तदार से मोहब्बत है। कहा ये सारी मोहब्बतें जहां पर निसार होंगी, जहां पर फिदा हो जाएंगी, जहां पर कुर्बान हो जाएंगी, जहां पर खैरात करनी पड़ेंगी, अगर आप कर गए खैरात, गुजर गए इनसे, अबूर कर गए इनसे, तो आप वादी मवद्दत में दाखिल हो जाएंगे। ये है वो मवद्दत जो हमसे नबी ने अपनी सारी उम्मत से मांगी है, अल्लाह ने अपने हबीब के जरिए अपनी सारी मखलूक से मंगवाई है। अब यहां देखें, एक दूसरी आयत आपकी खिदमत में अर्ज करें कुरान मजीद से। अल्लाह ताला इसमें फरमा रहे हैं, व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीना वब्न सबील वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। ये कुरान मजीद की सूरह असरा है और आयत नंबर 25 है इसकी। फरमाया व आते ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू, है मेरे रसूल अपने करीबियों को उनका हक दे दो। व आते ज़ल क़ुरबा, आपने देखा यहां पर भी क़ुरबा आया। और सूरह शूरा की आया नंबर 23 जिसको आया मवद्दत कहा जाता है, वहां भी लफ्स क़ुरबा आया। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। यहां पर फरमाया व आते ज़ल क़ुरबा, है रसूल आप दे दें अपने क़ुरबा को उनका हक। देखें जहां तक ताल्लुक है आयत मवद्दत का, वहां पर इमाम शाफी ने भी कहा या अहल बैतुन नबुव्वत हुब्बुकुम फर्ज़ुम मिनल्लाहि फिल कुरान अंज़लहू कफ़ा बिक़द्रिकुम अज़ीम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू। है नबी की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मोहब्बत को अपने कुरान में फर्ज करके नाजिल किया है। यही वो आयत है सूरह शूरा की आयत नंबर 23 जिसकी तरफ इमाम शाफी इशारा फरमा रहा है। आपकी मोहब्बत को कह रहे हैं अल्लाह ने अपने कुरान में फर्ज करके नाजिल किया है। ये किस पे फर्ज की है? ये अल्लाह ने अपनी सारी मखलूक पे फर्ज की है, रसूलुल्लाह ने अपनी सारी उम्मत पे फर्ज की है। ये फर्ज भी है और कर्ज भी है। तो किसी शायर का एक शेर था, अच्छा प्यारा जुमला था, कहा हाजियों पहले कर लो अजरे रिसालत तो अदा, सुनते हैं कि मकरूज को हज पे न जाना चाहिए। यानी हाजियों पहले आपके जिम्मे कर्ज है अहले बैत की मवद्दत का, जो खुदा ने डाला है, जो रसूल ने डाला है, जो कुरान ने डाला है। सूरह शूरा की आयत नंबर 23 में पहले इस कर्ज को अदा करो, क्योंकि हमने सुना है कि जो जिसके ऊपर कर्ज हो उसका हज कबूल नहीं होता। ये वो कर्ज है जिसको अगर आप और मैं अदा नहीं करते हम इस्लाम में दाखिल ही नहीं हो सकते। लोग भूले हुए हैं, कहां से आप इस्लाम में दाखिल हुए हैं? आयत तो ये कह रही है कि रसूल फरमा रहे हैं मेरी रिसालत का अजर मांग रहे हैं, कीमत मांग रहे हैं, सिला मुआवजा कीमत मांगी जा रही है। पैगंबर कह रहे हैं मेरी रिसालत की कीमत मुआवजा जो आपने देना है, उजरत, वो मेरे कुर्बा से मवद्दत है। अगर आप और मैंने नहीं की तो क्या रिसालत क्या है? वही इस्लाम है, वही दीन है। आप और मैं इस्लाम और दीन में नहीं आए अभी तक। लिहाजा
कितनी प्यारी ताबीर है इमाम शाफी की। फरमाया दूसरे मिसरे में, काफी है आपकी कदरो मंजिलत और मकाम और अजमत के लिए। शाफी क्या कहे, बहुत बड़ी बात है, अन्नकुम मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहू, जो नमाज में है नबी की अहले बैत, आप पर दुरूद और सलाम नहीं पढ़ता, ला सलात लहू, उसकी कोई नमाज नहीं है। जहां नमाज नहीं है वहां दीन भी नहीं है, वहां इस्लाम भी नहीं है, वहां शरीयत भी नहीं है। कोई दीन नहीं है, कोई शरीयत नहीं है, कोई इस्लाम नहीं है, जब तक के अहले बैत से मवद्दत नहीं है। अभी मैंने अर्ज किया मवद्दत क्या, एक लम्हे के लिए रिश्ता ना टूटे अहले बैत से। अलबत्ता मवद्दत के दर्जात हैं, ये आखिरी दर्जा है। किसी भी दर्जे की मवद्दत करेंगे तो नमाज नमाज बनेगी, रोजा रोजा बनेगा, हज हज बनेगा, ज़कात ज़कात बने, वरना नहीं बनते। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से ज़ुरैरा ने यह रवायत नकल की है, बुनी अल इस्लाम अला खमसत अशियाइन, इस्लाम 5 चीजों पर इस्लाम की अमारत जो है वो खड़ी है। मासूम फरमाते हैं, अज़्ज़कातो वल हज्जो व सौमो व सलात वल विलायतो, नमाज है, ज़कात है, हज है, रोजा है और 5वीं विलायत है। जनाब ज़ुरारा कहते हैं, मैंने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से सवाल किया, अय्यु शैइन मिन ज़ालिका अफजल, मौला इन 5 में से अफजल कौन सी है? इमाम फरमाते हैं, अल विलायतो अफजलो लिअन्नहा मिफ्ताहुन्ना, विलायत इन सब से अफजल है चूंकि विलायत इनकी चाबी है। वल वाली, इमाम फरमाते हैं, वल वाली हुवा दलील अलैहिन्ना, और वाली और वली और मौला और इमाम जो है वो रहनुमाई करता है इनके लिए, दलील। वो रहनुमाई करे तो पता चलता है नमाज क्या है, रोजा क्या है, ज़कात क्या है, हज क्या है। अगर वो दलील ना बने, अरबी में दलील रहनुमाई को कहते, तो आपको क्या पता। बस फरमाया ये मिफ्ताह है, चाबी है, विलायत चाबी है। और फरमाया आपने, अगर चाबी हो तो क्या होता है, जब तक आपके पास चाबी नहीं है नमाज कहीं बंद है, आपने देखी ही नहीं है, आपने शक्ल ही नहीं देखी नमाज की, रोजा आपसे ओझल है, ज़कात किसी और वादी में पड़ी हुई है, आप बहुत दूर हैं, आपके पास चाबी नहीं है। जब तक आपके पास चाबी नहीं होगी आपको किसी भी दीन की किसी भी चीज का पता नहीं चल सकता। ये तो मिसाल दी गई है। लिहाजा चाबी विलायत है और वो वाली है। इमाम फरमा रहे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, यानी वो आपका मौला, वो इमाम जो चाबी है जिसकी विलायत, वो है जो आपको बताएगा खुदा क्या है, दीन क्या है, हत्ता नबी क्या है। पैगंबर के लिए जनाब अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम ने मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बहुत सारे पहलू हैं। एक पहलू यह भी था कि लोगों के सामने पैगंबर का तारफ कराना, इस हस्ती का एहतराम कैसे करना है, इससे बात कैसे करनी है, इससे कैसे पेश आना है, इसके साथ मोहब्बत कैसे करनी है, इस पे निसार कैसे होना है। यही वजह है जब औद में सारे भाग जाते हैं तो जनाब अली मुर्तजा शेर की तरह पैगंबर के गिर्द तवाफ कर रहे होते हैं। तो रसालत मां पूछते हैं, या अली आप क्यों नहीं भागे? कहा, अकफर तो बादल ईमान या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, क्या मैं अली मोमिन होने के बाद काफिर हो जाता? मेरे इमाम आप मोमिन का, आप कुल्ले ईमान हैं, लेकिन अली की निगाह देखें, कुल्ले ईमान कह रहा है। अगर मैं रिसालत में आपको छोड़ देता तो मैं काफिर हो जाता। हम और किसी की बात नहीं करते, अली अपनी बात कर रहे हैं, अगर मैं छोड़ देता तो मैं काफिर हो जाता। तो ये अली हैं जो बता रहे हैं, जो नमूना है हमारे पास। तमाम चीजें इस वली, वाली और इमाम से मिलेंगी आपको, रसूल भी नहीं से मिलेंगे। वरना जिन्होंने इनसे नहीं लिए रसूल, जहां वक्त नहीं है मेरा मौजू और है, इसीलिए हमने वीडियो बनाई है, उन्होंने हर तरह की पैगंबर की तौहीन की है, चूंकि रसूल को रसूल की अहले बैत से नहीं लिया। और फिर जुल्म तो यह है कि असलन अहले बैत को लिया ही नहीं है, अहले बैत को इस्लाम से खारिज करने की कोशिश की है। इनकी मवद्दत दीन है,
इनकी मवद्दत इस्लाम है। अगर आप इनके बगैर दीन ले रहे हैं तो फिर पैगंबर को कीमत नहीं दे रहे, दो हाल से खाली नहीं है। या आप चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, गस्ब कर रहे हैं, जबरदस्ती किसी से कोई चीज छीन लेना। अगर आप पैगंबर को अब भी मौजूद समझते हैं तो आप पैगंबर की वो जो कीमत मांगी है देने के बगैर अगर आप अपने आप को दीनदार कह रहे हैं तो आप गासिब हैं, कीमत नहीं दी आपने। अगर आप पैगंबर को कह रहे हैं दुनिया से चले गए हैं, अभी नहीं है, ओझल है, तो फिर क्या है, फिर आप चोर हैं, डाकू हैं, किसी की चीज कीमत देने के बगैर उठा के लेके जा रहे हैं। ये अहले बैत हैं, अहले बैत दीन की रूह हैं। बहरहाल हम आपकी खिदमत में अर्ज करें, हम बीबी के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे थे। ये दूसरी आयत जो पढ़ी है, इंशाअल्लाह हम ये गुफ्तगू कुछ दिन आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह अर्ज करेंगे और 4-5 दिन बीबी के अयाम की मुनासबत से। आयत हमारी ये थी, वह आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू, कि मेरे रसूल अपने करीबियों को उनका हक दे दो। आयत का शान नज़ूल आपको बता दें, बाकी गुफ्तगू बाद में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। देखें, आयत का शान नज़ूल ये है कि जनाब अबू सईद खुदरी रिवायत कर रहे हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, लम्मा नज़ला व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू आता रसूलुल्लाह फातिमाता फदाका, ये रिवायत, इसको कुतुब अहले सुन्नत ने लिखा है। मीज़ानुल एतदाल ने जेल्द 2 सफ़ा 288 पे लिखा है। कंज़ुल अमाल ने अपनी जेल्द 2 सफ़ा 158 पे इसको लिखा है। और जलालुद्दीन सयूती ने भी दुर्र मंसूर में तफसीर में इस शान नज़ूल को लिखा है। ये सारे अहले सुन्नत के मोतबर बुजुर्ग उलमा हैं जिनने कहा कि व आते ज़ल कुर्बा हक़्क़हू की आयत जब नाजिल हुई, सूरा असरा की ये आयत, तो पैगंबर ने जनाब फातिमा को फदक दिया। सबने लिखा आता रसूलुल्लाह फातिमा ता फदकन, पैगंबर ने जनाब फातिमा को फदक अता किया था। ये खुदा कह रहा था कि मेरे हबीब मेरी कनीजा को उसका हक दे दो। और मैं यहां पर एक जुमला छोटा सा अर्ज करूं, देखें यहां पर भी कुर्बा का लफ्ज है आया, मवद्दत में भी कुर्बा का लफ्ज आया है। कुर्बा मुअन्नस का सीगा होता है अरबी में, बस और कोई मुराद हो या ना हो, सबसे पहले पैगंबर की बेटी मुराद है, फिर कोई और मुराद है कुर्बा से। लेकिन यहां कुर्बा से मुराद वही है जिनका रिश्ता जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के साथ खूनी है और जनाब सैयदा के बाल और शोहर नामदार ताजदार अमीर अल मोमिनीन, ये कुर्बा हैं। वो फिर अलग हदीस में इनके नाम बताए, सारा कुछ हम यहां तफसील ज्यादा नहीं अर्ज कर सकते। तो ये पैगंबर ने, ये कुरान कह रहा है, कुरान, हमने अभी हदीस नहीं पढ़ी, कुरान कह रहा है। और हदीस से तायीद ली है हमने मीज़ानुल एतदाल से, कंजुल अम्माल से और तफसीर दुर्र मंसूर से, ये अहले सुन्नत की तीनों किताबों का हवाला दिया है। वहां से तायीद ली है कि जब ये आयत नाज़िल हुई तो पैगंबर ने जनाब फातिमा को फदक दिया। आता रसूलुल्लाह फातिमा फदकन, पैगंबर ने फातिमा को फदक अता किया। और इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू इसी फदक के हवाले से और बीबी के हवाले से आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।